Hello students, today we will start a new chapter of geography. This is the resource and development. Here, resource means anything that can fulfill our need, such as pen, copy, mobile, laptop, vehicles, your transport, etc. But in other words, the resource, everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as a resource. स्टूडेंट्स यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, वो सारी चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट में हैं, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड, जिनका कि यूज हम करते हैं अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, और वो ही रिसोर्स कहलाते हैं। वो थिंग्स हमारे लिए क्या होनी चाहिए? पहली बात तो वो तभी हमारे लिए रिसोर्स होंगी जब टेक्नोलॉजिकली रूप से वो एसेसिबल हों, जिनको हम प्राप्त कर सकें। मीन्स हमारे पास वो टेक्नोलॉजी हो जो जिनको हम उस टेक्नोलॉजी का यूज करके उन थिंग्स को हम पा सकें। दूसरी, वो जब थिंग्स हमको मिले इकोनॉमिकली फिजिबल भी हों, जिनका हम यूज कर सकें इकोनॉमिक रूप से। मीन्स ये नहीं कि अगर हमको कोई थिंग्स मिलती है और उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। तीसरी चीज़ ये ध्यान रखना है हमको कि कल्चरली एक्सेप्टेबल, वो थिंग्स हमारे लिए कल्चरल सांस्कृतिक रूप से एक्सेप्टेबल भी हो। ऐसा नहीं है, मान लीजिए कहीं किसी ज़मीन पर बहुत सारा उसके नीचे कोयला दबा हुआ है, बट उस ज़मीन के ऊपर जो भी वेजिटेशंस हैं, जिनका कि बड़े बड़े पेड़ हैं, कल्चरली कोई सांस्कृतिक महत्व है, लोग वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, तब हम उस ज़मीन को खोद करके वो चीज़ नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि फिर वो हमारे लिए क्या होगा, कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। Here, this figure show the uh, interdependence relationship between the nature, technology, and institutions. Physical environment, here the nature, technology, and institution. Both means these are each interdependent with the human beings. अगर आप देखिए स्टूडेंट्स, तो जो नेचर हमारा है, इनका यूज हम तभी करते हैं जब इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजी हमारे पास होती है। इन इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजी मिल करके हम नेचर का अच्छे से यूज कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 डायमेंशन फिगर दिखाया गया है, यही बता रहा है कि नेचर हो या टेक्नोलॉजी हो या इंस्टीट्यूशंस हों, ये तीनों डिपेंड करते हैं ह्यूमन बींग्स पर। अगर ह्यूमन बींग्स नहीं हैं तो इनका कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेट्स बी डिस्कस the classification of resource on the basis of following. First is on the basis of origin, biotic and abiotic. Second, on the basis of exhaustibility, renewable and non-renewable. Third, on the basis of ownership, individual, community, national and international. And fourth is on the basis of status of development, potential, develop, stock and reserve. Let's be go forward and understand one by one. First is biotic and abiotic. Biotic means all the living beings is included in a biotic, such as plants, animals, protists, fungus and bacteria. Students, you must remember these examples. These are the very much important for your exams. Anyone can put up in your exams and you became confused. So remove your confusion here. Now second is the abiotic. All non-living beings are included in the abiotic: water, soil, air, minerals and light. Next is on the basis of exhaustibility, renewable and non-renewable. Okay students, here I will give you a figure that can help to understand difference between the renewable and non-renewable. First is the renewable. These resources are renewed or the replenished by nature in short span of time. ये ऐसे रिसोर्स हैं जो जल्दी ही तैयार हो सकते हैं, तैयार हो जाते हैं बाय द नेचर। एंड वाइल द नॉन रिन्यूएबल, दीज रिसोर्स में नॉट बी रिप्लेनिश बाय द नेचर,
टेक अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम टू बी फॉर्म अगेन। ये जल्दी से नहीं तैयार होते हैं, इनको बहुत लंबा समय लगता है तैयार होने में। जैसे कि ऑफन दीज आर अवेलेबल कंटिन्यूसली लाइक सोलर, वाटर एक्सेट्रा, while these resources are exhausted after use. And the examples is of the renewable is you can say that the solar energy, water, etc. While here the fossil fuels. Now students understands once again. Students जो रेन्यूएबल रिसोर्स होते हैं इनको हम रिन्यूड, रिप्रोड्यूस आदर रीजनरेट कर सकते हैं हर बार। जैसे कि आपको फॉरेस्ट एरिया है, आपके सॉइल हैं, आपका वाटर है, सनरेज हैं, इन सब को हम क्या करते हैं बार बार रीजनरेट कर सकते हैं। बट जैसे कि हमारा पेट्रोलियम है, कोल है, इन सब को हम रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। इनको जनरेट होने में मिलियंस ऑफ द ईयर्स लगता है। सो हम इनको नॉन रेन्यूएबल में इंक्लूड करते हैं। और ऐसी थिंग्स जिनको हम रिप्रोड्यूस, रीजनरेट कर सकते हैं या होते हैं स्वयं से वो, उनको हम रखते हैं नॉन मीन्स रेन्यूएबल में रखते हैं उनको हम। हियर आस नेक्स्ट फिगर रेन्यूएबल and this renewable is include in a soil energy, air, wind, water, tides flowing and soil plants, while the non-renewable includes fossil fuels, oil, coal oil, natural gas, metallic, non-metallic, both are includes। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि आयरन इज अ रेन्यूएबल और द नॉन रेन्यूएबल। तो या आप यहाँ से अपने आंसर को कंफर्म कर लीजिए, ये नॉन रेन्यूएबल होता है, क्योंकि आयरन को हम आयरन प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, बल्कि आयरन पड़ा होता है आयरन ओर के रूप में, उसको हम निकाल करके यूज करते हैं। बट अगर कहा जाए कि इसका हम जनरेट कर सकते हैं, रीजनरेट, बिल्कुल नहीं। ये जियोलॉजिकल प्रोसेस में होगा और इसको होने में मिलियंस ऑफ द ईयर्स लगते हैं। सो इसलिए आयरन जो होता है वो हमारा क्या है, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स है। नाउ नेक्स्ट डिवीजन इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। इन द हियर इज द फर्स्ट इंडिविजुअल, कम्युनिटी, national and international. Let's be go understand one by one. Here first, individual. The resources which are owned by private by individuals. Examples mobiles, land. ऐसे रिसोर्स जिनको कोई व्यक्ति या उनका खुद का अपना होता है वो इंडिविजुअल कहलाते हैं। जैसे आपके पास आपकी बाइक है, आपका बैग है, आपके लैपटॉप्स हैं, आपकी बिल्डिंग्स है, आपकी प्रॉपर्टी है, तो वो आपके इंडिविजुअल हुए। नाउ सेकंड इज द कम्युनिटी, द विच रिसोर्स आर एसेसिबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। एग्जाम्पल्स पब्लिक पार्क्स, प्लेग्राउंड। ऐसे रिसोर्स जिन पर लगभग सभी मेंबर का अधिकार होता है सोसाइटी के, वो जैसे कि आपके पब्लिक पार्क हैं या फिर प्लेग्राउंड हैं। एंड नेक्स्ट इज अ नेशनल रिसोर्स, the resource which belong to the government. Technologically all the resources belong to the nation. स्टूडेंट्स वो सारे रिसोर्स जो आपके देश में पाए जाते हैं, इवन जो रोड्स, ओशियनिक एरिया, जो भी कुछ हैं, वो सभी आपके कंट्री में जितने भी पाए जाते हैं, रिवर्स हैं, ओशियन हैं, रोड हैं, कैनाल्स हैं, फॉरेस्ट एरिया हैं, जो भी कुछ हैं वो सब आपके नेशनल रिसोर्स में इंक्लूड किए जाते हैं। यहाँ पर ये चीज़ गलत दिया गया है, हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये बुक की लाइन है और इस बुक की लाइन में दिया गया है कि देयर आर 12 नाटिकल माइल्स। 12 नाटिकल माइल्स मीन्स 22.2 किलोमीटर्स। स्टूडेंट्स 12 नाटिकल माइल्स मीन्स हुआ फ्रॉम द कोस्ट ऑफ द वाटर बॉडीज। देखिए ये हमारे इंडिया का हमने मैप बनाया। अब यहाँ पे आप समझिए 12 नाटिकल मीन्स हुआ कि यहाँ से इस हमारी लैंड बाउंड्री से इधर ओशियन तरफ, इधर आप जानते हैं कि आपका अरेबियन सी है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ से लेकर के लगभग कि 22 किलोमीटर वाटर एरिया में जितना भी ये पार्ट एरिया है, ये सब आता है आपका
उस कंट्री का एरिया माना जाता है। मीन्स ये इतनी दूर का एरिया 12 नॉटिकल माइल्स माना जाता है। कुल मिलाकर होता है आपका 22.2 किलोमीटर्स, जिस पर अधिकार होता है उस देश का। एंड नेक्स्ट इज इन इंटरनेशनल, the resource belong to the international institutions. Examples: ocean resource beyond to the 200 nautical miles of the EEZ. EEZ means special economic zone. यहाँ पर ये CEZ होना चाहिए था स्टूडेंट्स। मीन्स कोई भी देश होगा, उस देश के 12 नॉटिकल माइल्स के बाहर का जो एरिया होगा वो फिर स्टार्ट हो जाता है इंटरनेशनल बाउंड्री में। Let's students we discuss about the on the basis of status of development. First is a potential resource. Here resources which are found in a region but have not been utilized. For example, western part of India. स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये समझिए, पोटेंशियल रिसोर्स मीन्स होता है ऐसे रिसोर्स जो कि किसी एक स्पेशल रीजन में पाए जाते हैं बट उनका हम फुली यूज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हमारे राजस्थान और गुजरात के एरिया में हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का अच्छे से यूज कर सकते हैं, बट हम उतना नहीं यूज कर पा रहे हैं जितनी मात्रा में हमको करना चाहिए। नेक्स्ट इज अ डेवलप्ड रिसोर्स, रिसोर्स विच आर सर्वेड एंड देयर quantity and quality and quantity have been determined for utilization. ऐसे रिसोर्स जिनको सर्वे किया गया है और उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी का पता लगा लिया गया है उनको यूज करने के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजिकली एंड लेवल ऑफ फिजिबिलिटी, बट उनका हम नहीं यूज कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। नेक्स्ट इज अ स्टॉक, materials in the environment which have the potential to satisfy human needs. हमारे environment में ऐसी भी things हैं जो human needs को fulfill कर सकती हैं, but human being do not have the appropriate technology to assist them. लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिनका कि हम यूज करके उनका यूज करें उस टेक्नोलॉजी का और वो थिंग्स हमारे लिए एक यूजफुल रिसोर्स बन जाए। जैसे हम देखते हैं कि वाटर है H2O, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिले हुए हैं और हाइड्रोजन हमारे लिए फ्यूचर एनर्जी है, फ्यूचर की सबसे बेस्ट एनर्जी है। तो बट हम जानते हैं कि वाटर में हाइड्रोजन है लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिनका कि यूज़ करके हम हाइड्रोजन को निकाल लें, अलग कर लें और उनका यूज हम एज आ एनर्जी करें, एज आ फ्यूल करें। हियर नेक्स्ट इज अ रिजर्व. Reserve are the subset of the stock which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. समझिए स्टूडेंट्स, रिजर्व एक सबसेट है, एक उसी का लगभग एग्जाम्पल है स्टॉक का, कि इसमें क्या है कि हम जानते हैं कि हाँ रिसोर्स हैं बट उनका आज हम भविष्य में उनका हम यूज़ कर पाएंगे फुली, अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हमारे पास वाटर है, डैम्स बनाते हैं हम, है ना, अब बट उन डैम्स से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं रिवर पर डैम बना करके, बट आज अभी हम कम कर रहे हैं, हमको ये पता है कि इन फ्यूचर इनका हम ज़्यादा यूज करेंगे। सो दिस इज द स्टॉक एंड रिजर्व। लेट्स बी डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस. Resources are the vital for the human survival as well as for the maintaining the quality of life. स्टूडेंट्स ह्यूमन स्टूडेंट्स रिसोर्स बहुत ही नेसेसरी थिंग्स हैं ह्यूमन बीइंग के लिए और ये उनकी लाइफ को मेंटेन करते हैं बिकॉज दे फुलफिल द नीड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स लाइक ऑक्सीजन, फूड एंड सो। बट क्या है कि आज के दौर में इन रिसोर्स का हमने इतना ज़्यादा यूज कर लिया है कि इसके कुछ दुष्परिणाम हमारे सामने हैं, जैसे कि डिप्लेशन ऑफ द रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। आज रिसोर्स का यूज इतना ज़्यादा कुछ इंडिविजुअल कर ले रहे हैं अपने लिए कि औरों के लिए शायद वो बचना या उनका रहना ही मुश्किल हो जा रहा है।
दूसरा है एक्यूमुलेशन ऑफ द रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स। आज रिसोर्स केवल कुछ ही लोगों के हाथ तक मौजूद हैं, विच इन टर्न डिवाइड द सोसाइटी इंटू टू सेगमेंट्स, हैव एंड हैव नॉट्स, रिच एंड पुअर। मीन्स आज कुछ लोग जो अमीर हैं वो ज़्यादा रिसोर्स का यूज़ कर पा रहे हैं, वहीं पुअर कम कर पा रहे हैं, या उनके पास है या फिर नहीं है। जैसे आप देखते होंगे कि कोई बड़ा व्यक्ति है जिसके पास 10-10 गाड़ियां हैं, तो बहुत सारा पेट्रोल डीजल वो खर्च कर रहा है, अपने रहने सहने पर एसी लगा ले रहा है, वहीं पर गरीबों के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो इससे क्या है, समाज में एक डिवाइडेशन हो जा रहा है अमीर और गरीब के बीच का। लास्ट है हमारा, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स हैज़ लेड द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। और जब हम इस रिसोर्स का बहुत ज़्यादा बैडली यूज करते हैं तो इनकी वजह से होता क्या है कि कुछ हमको परेशानियां भी झेलना पड़ता है, जिससे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है, ओजोन लेयर ख़त्म होती है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ता है और लैंड डिग्रेडेशन होती है और लैंड भी हमारी ख़राब हो जाती है। हियर द नेक्स्ट टॉपिक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Sustainable development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation. Sustainable development मीन्स होता है कि आज आप डेवलप हो अपने आप को, बट इस हिसाब से करो कि अब फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आपके रिसोर्सेज सेव रहें। मीन्स हमको फ्यूचर जनरेशन के लिए ऐसा नहीं कुछ भी नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं कि आज हम पेट्रोल का यूज़ करें तो इतना ज़्यादा यूज़ कर लें कि फ्यूचर में पेट्रोल ना ही बचे, ना ही कोल बचे, ना ही कोई और रिसोर्सेज बचें। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने मतलब हुआ है कि यूज़ द रिसोर्स इन केयरफुल मैनर। जब हम रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं केयरफुल मैनर में, देन इट इज़ नोन एज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेट्स वी डिस्कस हियर द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। Students, here the year is important for you. बोर्ड एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि इन विच ईयर द अर्थ समिट वाज हेल्ड 1992, या घुमा के पूछ लेंगे कि इन 1992 विच समिट वाज हेल्ड, तो आपको बताना पड़ेगा अर्थ समिट। तो लेट्स वी डिस्कस अबाउट दिस। In June 1992, more than 100 heads of the states met in the Rio de Janeiro in Brazil for the first international Earth Summit. यही क्वेश्चन बनता है कि in which year the first international summit was held? Your answer is 1992. The summit was convened for the addressing urgent problems of the environmental protection. This is the main things. यही से आपको अंडरलाइन करना है अपने बुक में, यही समझना है कि द प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट अ ग्लोबल लेवल। जो अर्थ समिट हुआ था उसका एक ही मतलब था कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को हमको बढ़ावा देना है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, और सोशल और इकोनॉमिक रूप से सबको सक्षम बनाना है। इसी का यहीं पर इसका यही मेन मतलब था। इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिए अपने बुक में, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और दिस इज आल्सो नोन एज एजेंडा 21। तो यहाँ से दो तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द एजेंडा 21। यू कैन राइट इन योर कॉपी, एजेंडा 21 इज अ मीटिंग्स ऑफ द 100 heads in a Rio de Janeiro, in which the 100 heads discuss on over the environmental protection and the socio-economic development at a global level. Here the main things is a full form of UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। इसको आप जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट्स। एंड सम मेन थिंग्स अबाउट द एजेंडा 21। इट इज एन एजेंडा टू कम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिसीजेस थ्रू आउट ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन द कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शुड एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि हमें ग्लोबल लेवल पर पॉवर्टी हटाना है, बीमारियों से लड़ना है, सभी लोगों को बराबरी का उनको इकोनॉमिक और सोशल हक देना है। यही सारी बातें एजेंडा 21 में डिस्कस की गई थी। नेक्स्ट इज रिसोर्स प्लानिंग। हियर रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया इज डन इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट इज द आइडेंटिफिकेशन and inventory the resource by surveying and mapping.
रिसोर्स को आइडेंटिफिकेशन करना है, इन्वेंटरी, रिसोर्स सर्विंग एंड मैपिंग के थ्रू उनको जा कर के सर्वे करना कि रिसोर्स कहाँ पर हैं, मैपिंग करना कि कितनी दूर में है, किस रास्ते पे है, कैसे जाके हमको ये मिलेगा। इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, फिर उसको निकालने के लिए, उसको ऐड करने के लिए किस तरह का हम प्लान बनाते हैं, वो चीज़ हमको ध्यान में रखना है। एंड थर्ड इज अ मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, और जिस एरिया में रिसोर्स मिलते हैं वहाँ का प्लान, वहाँ का डेवलपमेंट प्लान रिसोर्स कितना हमारे लिए है, किस मात्रा में है, किस क्वालिटी का है, और पूरे देश के प्लान से हमको मैच कराना है कि हाँ यहाँ पर मिला हुआ है और देश के अन्य भागों में जो मिला हुआ किस कैटेगरी का हमारे पास है। लेट्स बी डिस्कस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेस। हियर द वन statement of Gandhiji is very famous. Here there is enough for everybody's need and not for anybody's greed. Means there is enough for everybody's need. यहाँ पर सभी की नीड को फुलफ़िल करने के लिए बराबर चीज़ें हैं। मीन्स हम सभी की नीड को तो फुलफ़िल कर सकते हैं, एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, लेकिन सबकी लालच को या हम किसी के लालच को फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ महात्मा गांधी।